Hello everyone, how are you? Hope that everything is fine, and we are now moving on to chemistry portion also. We have discussed the life process chapter of 10th biology. Now we are going to do today class 10th chemistry portion, acid, bases and salts. So first let us see start from the definition from the topic से start करते हैं. What are acids? Acids क्या होता है? In the lower classes everybody of you have learned that acids are the substances which are sour in taste. Sour, जो sour taste का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Acid बोलते हैं. We have learned like this that acids are the substances which are sour in taste and bases are the substances which are bitter in taste. So these were our earlier definitions for lower classes, but we cannot define acids and bases like this on the base of test, because test is cannot be used as a fundamental characteristics to distinguish between the acid and the base. So acid में क्या होता है? This all acids, now we will define acids in this way. These acids are the substances which can release hydrogen ions when dissolved in water. मीन्स मतलब क्या है, जब पानी में हम लोग डालेंगे एसिड को तो एसिड से क्या रिलीज होता है? हाइड्रोजन आयंस रिलीज होगा. फॉर एग्जांपल वी कैन सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. we will learn about this acid and base in the later part of the chapter. Again, now HCl is a strong acid. When this is dissolved in water, जब इसको पानी में डालते हैं, then what happens? It gets splitted into hydrogen and chloride ions. So here is the release of hydrogen ion. We can see in the case of sulfuric acid is also H2SO4. When it is dissolved in water, then what happens? Two hydrogen ions plus sulfate ions are released. Here also hydrogen ion is released. So acids are those substances which releases hydrogen ions, जिससे hydrogen ions release होता है. कब release होता है? जब हम लोग उसको पानी में dissolve करते हैं, पानी में डालते हैं तब. So now we will define for our class, for class 10, we will say the definition like this, that acids are the substances which release hydrogen ions when dissolved in water, and we can also add that they are sour in taste. But we must say this portion is compulsory. Now bases are bitter in taste. These bases release, क्या release करता है? OH ions means what? Hydroxide ions. These bases release hydroxide ions when dissolved in water. जब इसको पानी में डालते हैं बेस को, तब hydroxide ions release करता है. Means that कोई भी substance जो पानी में डालने के बाद OH ions, hydroxide ions release करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? bases बोलेंगे. For example, we can see sodium hydroxide, most common example NaOH. When it is dissolved in water, then what happens? Sodium ion plus OH ion are released. So here hydroxide ion is released. Again, let us see calcium hydroxide, CaOH2. When it is dissolved in water, what happens? Calcium ion plus OH ions are released. Two molecule of OH ions are released. So यहाँ पर भी क्या हो रहा है? Hydroxide ion. यहाँ पर भी क्या हो रहा है? Hydroxide ions are released. So we see that we can define now bases, that bases are those substances which release hydroxide ions. Sorry, this will be negative because it is negative ion, anion. So bases are those substances which release hydroxide ions when dissolved in water. We will define the bases in such a way now. Now acid और base को टेस्ट करने के लिए जो substances होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Indicators. These indicators, what they do? They test or detect. क्या करता है? Test or detect the presence of acid or base in a substance. These indicators detect the presence of acid or base in a substance. मतलब कोई भी substance में acid है या फिर नहीं है, बेस है या फिर नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है इंडिकेटर्स को. सो इंडिकेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. अगेन हियर आई हैव रिटन नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स.
Now natural indicators are those indicators which are obtained from plants, means which are obtained from natural materials, natural things. जो नेचर से जो मिलता है, प्लांट से जो मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स. फॉर एग्जाम्पल लिटमस, यू हैव हर्ड द टर्म आई थिंक लिटमस. लिटमस जो होता है, लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर, मतलब लिटमस का पेपर भी होता है, पेपर ऐसे स्ट्रिप में पाया जाता है या फिर सॉल्यूशन में भी पाया जाता है. इट इज अवेलेबल इन द सॉल्यूशन फॉर्म ऑल्सो एंड इन पेपर फॉर्म ऑल्सो. नाउ लिटमस जो होता है, दिस लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर. एंड रेड कैबेज, we have red cabbage extract is there, tamarind is there, turmeric is there, turmeric. These all are natural examples of natural indicators. तो लिटमस जो है ये कैसे डिटेक्ट करेगा, कैसे हम लोग को बताएगा कि कोई भी सब्सटेंस में एसिड या बेस है कि नहीं. सो नाउ लेट अस सी. When litmus is dissolved in a substance, अगर कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पर एक सब्सटेंस है, एक केमिकल, दिस इज अ सब्सटेंस और एक केमिकल. सो ये सब्सटेंस में लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर is available in two colors. One is blue litmus paper and another one is red litmus paper. अगर फिर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर, ये सपोज दिस इज ब्लू लिटमस पेपर, अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग इस सब्सटेंस में डालते हैं एंड द ब्लू litmus changes to red color. If we dip blue litmus paper in the substance, अगर कोई यहाँ पर substance है, this is the substance that we want to test whether it contains acid or base or not. अगर इस substance में ये blue litmus paper डालते ही क्या हो जाता है, it turns red, then the substance contains, क्या होता है इसमें, acid, then the substance is acid we can say. Now if red litmus paper changes into blue, suppose we are taking a strip of red litmus paper, एक लाल रंग का लिटमस पेपर हम लोग ने इस सब्सटेंस में डुबा दिया है. now if the color of this red litmus paper changes to blue, then the substance contain a base है इसमें. now blue litmus paper जो है, blue litmus paper will turn red in acid solution, red litmus paper will turn blue in basic solution. now अगर हम लोग एसिड सॉल्यूशन में क्या लेते, रेड लेते, ठीक है. इफ दिस इज एसिड, ये दोनों दूसरा केस है. इफ दिस इज हियर इज वन मोर केस. नाउ इफ वी आर टेकिंग रेड लिटमस पेपर क्या में ले रहे हैं, एसिड में ले रहे हैं, देन क्या होगा, नो चेंज इन कलर, द कलर विल नॉट चेंज. समझ में आ रहा है. इफ वी डिप रेड लिटमस पेपर टू एन एसिड, अगर एसिड में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो क्या होगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. अगेन इफ वी डिप ब्लू लिटमस पेपर टू ए बेस, कोई भी बेस में अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं फिर भी क्या होगा, नो चेंज इन द कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. नाउ लेट अस सी अबाउट द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है, दिस रेड कैबेज इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर एंड दिस इज रेड इन कलर, ये लाल रंग का होता है, दिस इज रेड इन कलर. नाउ दिस रेड कैबेज रिमेन्स एसिडिक में क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस में ये रेड कैबेज डालने के बाद रेड कलर ही रहे तब क्या होगा, देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को अगर एसिड में हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, द कलर विल नॉट चेंज, द कलर ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन रेड. एंड बेस में अगर डालेंगे, इफ वी डिप दिस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इन बेसिक सॉल्यूशन, देन व्हाट विल हैपन, it will turn green. Okay, now let us see about the synthetic indicators are obtained from minerals. These are prepared from minerals present in the earth. तो ये मिनरल से लैब में हम लोग बनाते हैं. नाउ एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थालिन आर द टू मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स. मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थालिन. नाउ मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो एसिड में अगर डिप करेंगे हम लोग, एसिड में अगर डालते हैं तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज विल टर्न इनटू रेड कलर. एंड इफ इट इज पुट इन बेसिक सॉल्यूशन देन इट विल टर्न इनटू येलो कलर. ओके,
सो इफ देयर इज एनी सब्सटेंस, यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है, एक केमिकल है, दिस इज एनी सब्सटेंस और एनी केमिकल. नाउ इफ मिथाइल ऑरेंज, यहाँ पर हम क्या, मैंने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज, आई हैव पोर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इसमें डाल दिया. डालने के बाद अगर ये रेड हो जाता है, द सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन बिकम्स रेड, देन इट शोज दैट दिस सॉल्यूशन इज एसिड. इसमें क्या है, एसिड है. इफ दिस सॉल्यूशन नाउ, अगर ये मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट, येलो इन कलर. अगर ये सॉल्यूशन पूरा येलो कलर हो जाता है, देन दिस सॉल्यूशन इज बेस. दिस सॉल्यूशन इज ए बेस. दिस सॉल्यूशन कंटेन्स बेस. नाउ लेट अस सी अबाउट phenolphthalein. Phenolphthalein, if we put phenolphthalein in acidic solution, then what happens, the color of the substance changes to colorless. मतलब कि solution जो है वो क्या हो जाएगा, colorless हो जाएगा. And if we put in basic solution, if the phenolphthalein is put in basic solution, then it gives pink color. तो यहाँ पर कोई भी एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है, केमिकल है, अगर ये केमिकल में हम लोग क्या डालेंगे, फेनोप्थालिन डालेंगे. इफ वी आर पुटिंग फेनोप्थालिन, देन एंड द कलर चेंजेस टू कलरलेस. मतलब ये पूरा सिस्टम का कलर जो है ये पूरा एकदम कलरलेस पानी की तरह हो जाए, देन द सब्सटेंस इज व्हाट, दिस सब्सटेंस इज एसिड. अगर ये कलर जो है दिस चेंजेस टू पिंक, अगर ये पिंक चेंज हो गया, देन इट इज व्हाट, इट इज बेस. द सब्सटेंस, दिस केमिकल इज बेस. Now third type of indicator is the olfactory indicator. Olfactory indicator में क्या होता है, these substances show the presence of acid or base by changing their, कैसे change करके, by changing their odor. O-D-O-U-R. Odor means what? Odor means smell. Now these two indicators, natural and synthetic indicator जो था, these two indicators they indicate the presence of acid or base by changing their colors change करके बताता है. we have seen many color changes are taking place here in the natural and synthetic indicator. litmus में भी blue वाला जो है red में change हुआ था, acid में acid, और फिर base में क्या हुआ था, red litmus जो है वो blue change हो गया था. red के बाद जो है वो acidic solution में red बन जाता है और फिर basic solution में green turn हो जाता है. methyl orange becomes red in acidic solution, becomes yellow in basic solution. phenolphthalein becomes colorless in acidic solution and pink in basic solution. ये सब में कलर चेंजेस हो रहा था. ऑल्फैक्टरी में जो है, ऑल्फैक्टरी में कोई कलर चेंज नहीं होगा. यहाँ पर क्या होगा, द ऑर्डर, द स्मेल विल चेंज. यहाँ पर स्मेल जो है उसका वो चेंज होगा. सो फॉर एग्जाम्पल vanilla extract and onion, these two are common examples of olfactory indicators. Now we will see that if any base, if vanilla जो है, vanilla is tied around, the vanilla is put in a base. अगर कोई बेस में वेनिला को डालेंगे तो क्या होगा, वेनिला का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या हो जाता है, डेस्ट्रॉयड हो जाता है. द ऑर्डर ऑफ वेनिला गेट्स डेस्ट्रॉयड. मतलब कि वेनिला का जो अच्छा सेंट होता है, अच्छा जो खुशबू होता है, वो क्या हो जाता है, वो एकदम बिगड़ जाता है, वो कोई ऑर्डर देगा ही नहीं. बट इफ इट इज पुट टू एसिडिक सोल्यूशन, अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट को हम लोग एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तब क्या होगा, वेनिला स्मेल विल रिमेन. वेनिला स्मेल विल रिमेन मतलब वेनिला का जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो बरकरार रहता है. बेस में डालेंगे तो क्या, एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, वेनिला का जो स्मेल है वो उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, नो चेंज आएगा. द स्मेल ऑफ वेनिला विल रिमेन. एंड इफ इट इज पुट इन बेसिक सोल्यूशन तब क्या होगा, वेनिला का जो स्मेल था, ऑर्डर था, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब कोई उससे ऑर्डर नहीं आएगा. ऐसा ही होता है ऑनियन में भी. इफ इट इज पुट इन बेस, देन व्हाट हैपेंस, ऑर्डर गेट्स डिस्ट्रॉयड. जो ऑनियन का स्मेल होता है, अगर उसको हम लोग, ऑनियन को अगर हम लोग बेस में डालते हैं, कोई एक सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका ऑर्डर जो है, ऑनियन का ऑर्डर, ऑनियन का स्मेल जो है वो एकदम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, देन द सब्सटेंस इज व्हाट, इट इज बेस. इफ द स्मेल रिमेन्स,
अगर स्मेल रहता है, ऑनियन कोई भी सब्सटेंस में डालते हैं हम लोग और उसका स्मेल, ऑनियन का स्मेल बरकरार रहता है, देन द सब्सटेंस इज एसिड. सो हियर इन केस ऑफ एसिड ऑनियन स्मेल विल रिमेन, ऑनियन स्मेल बरकरार रहता है. सो अब एसिड के बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट बेसेस, आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट salts and some of the compounds obtained from the salt in this chapter. तो एसिड जो होता है, we have seen these acids are the substances which release hydrogen ions when dissolved in water. जब इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तब इससे क्या रिलीज होता है, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होता है. ओके, एंड नाउ दिस एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. नाउ फर्स्ट वन, ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, दीज आर एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. मतलब प्लांट से जो निकाला गया है, प्लांट से जो मैन्युफैक्चर किया गया है, उस एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ठीक है. सिंथेटिक एसिड्स आर दोस एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स इनसाइड द लेबोरेटरी. तो सिंथेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल भी बोलते हैं. ना ऑर्गेनिक एसिड एग्जाम्पल क्या क्या है, ऑर्गेनिक एसिड लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड दिस इज फाउंड इन द कर्ड. साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, साइट्रिक एसिड इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन. ओके, एंड अदर फ्रूट्स. साइट्रिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, एसेटिक एसिड, these all are common examples of organic acids. And mineral acid, ये जो mineral से जो बनता है means synthetic acid, they are hydrochloric acid, sulfuric acid H2SO4, nitric acid HNO3, phosphoric acid, okay, and many more are there. Strong acid अब क्या होता है, these are those acids which have high, so which are what, which have high low pH value, जिसका pH value बहुत कम होता है, and they are more powerful, they cause more they are more corrosive in nature, बहुत जो corrosive nature होता है. and these strong acids are mostly synthetic acid. मतलब ये जो acid है synthetic acid, यही सब ये ज़्यादा strong होता है, powerful होता है, and they can cause more, क्या कर सकता है, मोर कोरोसिव कर सकता है, बहुत जला सकता है, कोरोजन कर सकता है. सो स्ट्रॉन्ग एसिड एग्जाम्पल आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4. दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर मोर पावरफुल. वीक एसिड दे डू नॉट हैव, एंड दिस वन हैव लोअर pH value. we will see about the pH value also in later. जो pH वैल्यू कम होता है, मतलब कि pH वैल्यू कितना होगा, 1 2 3, दिस दे विल हैव pH वैल्यू ऑफ दिस रेंज 1 2 3, एंड सम में हैव 4. तो एक 1 2 3 4, दिस विल बी द pH वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड. वीक एसिड जो है इसका pH वैल्यू क्या होगा, 5 and 6 होगा, 5 and 6, समटाइम्स 4 ऑल्सो इट कैन बी. एंड दे आर मोस्टली द ऑर्गेनिक एसिड. ये सब क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसका पावर बहुत कम होता है. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया. दीज आर ऑल, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन tamarind. These are all examples of weak acid which have weak power. Concentrated acid, these are the acids which have less amount of water. जिसमें पानी का अमाउंट बहुत कम होता है, पानी का मात्रा बहुत ही कम होता है. सो कंसनट्रेटेड एसिड आर दोस एसिड विच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जिसमें पानी बहुत कम होता है. ओके, एंड डाइल्यूट एसिड आर दोस एसिड विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. जिसमें पानी हम लोग बहुत ज़्यादा मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो सब एसिड को डाइल्यूट एसिड बोलते हैं. मोस्टली वी यूज डाइल्यूट एसिड बिकॉज कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है इट इज़ वेरी मच डेंजरस. थोड़ा सा ही कंसनट्रेटेड एसिड हाथ पे गिरने से बहुत नुकसान हो सकता है. सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एसिड्स. वेरी इजी. ऑर्गेनिक क्या होता है, प्लांट से जो मिलता है, मतलब नेचुरल थिंग से जो मिलता है. सिंथेटिक क्या होता है, जो लैब में बनाया जाता है, मैन बनाता है मिनरल से, केमिकल से जो बनाता है. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो ज़्यादा पावरफुल होता है. वीक एसिड क्या होता है, जो थोड़ा सा कम पावरफुल होता है. कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें पानी का मात्रा बहुत कम हो. डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा हो.
नाउ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ओके, दे आर सूर इन टेस्ट, ये सबको पता है, सूर होता है, तीखा होता है खाने में, एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको क्या करता है, वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस डिस्कशन कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, और रेड लिटमस को क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को नो चेंज, मतलब रेड लिटमस तो रेड ही रहेगा, तो सो देयर इज नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर। नाउ दे आर ऑफ कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर मतलब क्या है, जला देता है, सो दे कैन डैमेज, दे कैन डिस्ट्रॉय this paper, they can destroy this board, they can destroy your hand whenever it falls upon it. So for today up to this only, and tomorrow we will see the second part, we will see the chemical properties of acid which are very much important. chemical properties of देखेंगे, वो इस टॉपिक के लिए वही सब important है. Now we were discussing the introduction part of this chapter. Stay safe everybody, goodbye.